محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالی اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ کووڈ-19 کی تیسری لہر ویرینٹ اومیکرون کے قہر برپا ہونے سے روکنے کے لیے ضلع انتظامیہ و ذمہ دار عہدیداران احتیاطی اقدامات روب عمل میں لائے۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا خطاب۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج کے ہمراہ ضلع جنرل ہاسپٹل کی جدید ایمبولینس کا کیا افتتاح۔ ہر اسمبلی حلقے میں 100 مستحق اشخاص کو منتخب کرتے ہوئے دلت بندھو اسکیم کو روب عمل میں لانے کے لیے ریاستی وزیر کوپلا ایشور نے ضلع کے تمام کلکٹران کو دی ہدایت۔ سست رفتاری میونسپل کانٹریکٹر سے عوام بے حال۔ بودھن روڈ پر جاری نالی کے تعمیری کام 1.5 ماہ سے جاری۔ تعمیری کاموں کو جلد مکمل کرنے کے لیے عوام نے عہدیداروں سے کی روشن ٹی وی کے ذریعے اپیل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ضلع انتظامیہ کووڈ کی نئی شکل ویرینٹ اومیکرون کے قہر پر قابو پانے کے لیے احتیاطی اقدامات کو روب عمل میں لاتے ہوئے مکمل طور پر فیور سروے کرنے کا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ذمہ دار عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ضلع نظام آباد کے پرگتی بھون میں ریاستی وزیر امارات و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے کووڈ-19 کی تیسری لہر پر قابو پانے کے لیے ذمہ دار عہدیداران کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ، کلکٹر نارائن ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کہا کہ ریاستی سطح پر فیور سروے کا بروز جمعہ سے آغاز عمل میں لاتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر ANM و آشا ورکرز کی جانب سے ہیلتھ سروے کا کامیاب انعقاد عمل میں لانے کا اظہار کیا، اور بتایا کہ کووڈ-19 کی تیسری لہر کا قہر برپا ہونے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ فوری طور پر احتیاطی اقدامات کو روب عمل میں لانے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اسی طرح سے انہوں نے کووڈ کی پہلی لہر و دوسری لہر میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو قابل ستائش قرار دے کر اظہار تشکر پیش کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گھر گھر فیور سروے کے تحت افراد خاندان میں موجود افراد میں کھانسی، بخار و دیگر علامات کی نشاندہی کر کے فوری طور پر انہیں آئسولیشن کٹ فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ టచ్ చేస్తూ ఉన్నది అందరూ మనం పోయినసారి 2 దఫాలుగా జిల్లా యంత్రాంగం గౌరవ శాసనసభ్యుల మార్గనిర్దేశకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా పనిచేసింది। ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 కూడా మనం మంచిగా ఎదుర్కొన్నాం। వైద్య సిబ్బంది, శానిటేషన్ సిబ్బంది, పోలీస్, రెవెన్యూ చాలా బాగా పనిచేశారు। వారందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలు। అందరి సమిష్టి కృషి వల్ల నష్టం జరిగిన అందరితో వేరే దేశాలు కావచ్చు, వేరే రాష్ట్రాలు కావచ్చు, వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మన దగ్గర తక్కువనే నష్టం జరిగింది। వాటి నుంచి నేర్చుకున్న గుణపాఠాలు, వాటి నుంచి నేర్చుకున్న అనుభవాల దృష్ట్యా మళ్ళీ థర్డ్ టైం ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది, బట్ అంత సీరియస్ కాదు అని చెప్తా ఉన్నారు। అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారు, చాలా ఎక్కువ మంది ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, కానీ దాని ఇంటెన్సిటీ చాలా తక్కువ। హాస్పిటలైజేషన్ వెళ్ళడం కూడా అవసరం లేదు, ఎక్కడికెక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్తా ఉన్నారు। సో ఇవన్నీ అనుభవాలు, నివేదికలు, వైద్యుల సలహాలు, సూచనలు
ఇవన్నీ దరిమిలా ఇవన్నింటినీ క్రోడీకరించుకొని మండే నాటి మేము సిద్ధంగా ఉంచేట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం సార్. ఈ 4 అంశాలు జనరల్గా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం సార్. దీంతో పాటుగా 5వ అంశం వచ్చేసి ఓన్లీ ఈ 3 ఆకులు సార్. అది జీజీఎస్ ప్లస్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ పోర్టల్, అదేవిధంగా ఏరియా హాస్పిటల్ 6 మంది ఆ సూపరింటెండెంట్ కూడా మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్లో ఏ విధంగా మీరు అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ దాదానగర్ విఠాలరావు గారు, జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారు, సిపి నాగరాజు గారు, జిల్లా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడికి చేసినటువంటి జిల్లా అధికారులు, డాక్టర్లు, డిఎంహెచ్ఓ గారు, మీడియా మిత్రులందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం. ఇంతకుముందు కోవిడ్ ఏదైతే 2020లో వచ్చిందో అప్పుడు సమర్థవంతంగా మనం ఎదుర్కొన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేసినా కూడా ఒక చరిత్ర, ఒక అద్భుతం, ఒక సంచలనం. సమగ్ర సర్వే నిర్వహించినప్పుడు దేశంలో అందరూ కూడా మన రాష్ట్రం వైపు చూసారు. ఇది సాధ్యమవుతుందా? ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్, సమగ్ర సర్వే అనేది సాధ్యమవుతుందా అని. ఒక రోజులో చేసి చూపించి ఇది సాధ్యమే అని నిరూపించినటువంటి ఘనత కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. सुस्त रफ्तारी म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर से अवाम बेहाल। बोधन रोड पर जारी नाली के तामीरी काम 1.5 माह से जारी। तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए अवाम ने ओहदेदारों से की रोशनी टीवी के जरिए अपील। एक जानिब दिन ब दिन शहर में हो रहे तरक्याती कामों से अवाम काफ़ी खुश है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बर वक्त फ्राहम किए जाने वाले फंड्स के बावजूद निजामाबाद की म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से मनमानी से अवाम काफ़ी परेशान है, जिसकी ताज़ा मिसाल शहर निजामाबाद के अहम तिजारती व मसरूफ तरीन बोधन रोड की है, जहां पर बारिश के पानी की निकासी के लिए जदीद नाली की तामीर की जा रही है, लेकिन इन कामों की सुस्त रफ्तारी यहां के कारोबारी व अवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर्स को कई बार वाकिफ करवाने के बावजूद भी काम काफी सुस्त रफ्तारी में अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर अवाम ने रोशन टीवी के जरिए हुकूमत के आला ओहदेदारों से कार्रवाई करते हुए मसले के हल के लिए नुमाइंदगी की। देखिए यहाँ पे देखो कारोबार सब बंद है। यहाँ पे जो काम चल रहा है 1 महीने से 1.5 महीने से काम चल रहा है। एक मिस्त्री 2 लेबर लगाने से कुछ काम होने का है क्या? ये मेन मार्केट है, ये कारोबार का है, बिजनेस एरिया है, ट्रैफिक एरिया है पूरा। आप ज़रा देखिए, इधर देखिए कैसा हाल होगा पूरा। ज़रा जल्द से जल्द हमारे कॉरपोरेटर साहब से और अपने कॉन्ट्रैक्टर साहब से गुजारिश है कि ये काम को जल्द से जल्द ये करिए। दुकान के सामने पूरा चिक्कड़ मट्टी जमा कर दिए, उठा रहे नहीं, कर रहे नहीं। महीना भर होगा, पूरा दुकानदारी बंद है। कब तक चलेंगे ये? दूसरे व्यवसाय वाले दुकानदारी डाल के बैठे। ये जल्दी जल्दी काम करने लगाओ, जरा गुजारिश है हमारी। ये पूरी मट्टी विट्टी हटाने लगाओ। जो काम चल रहा है हमारे घरों के सामने 1 महीना हो गया, उसका काम ही नहीं है। 2 लेबर लगा है, 1 फोरमैन है। अब क्या करेंगे? तो दुकान पूरे बंद है 1 महीने से। परेशान है यहाँ लोग। रोड की मट्टी भी नहीं हटा रहे बरोबर। कारोबार यहाँ कुछ सब पूरे कारोबार बंद है यहाँ पर। हाँ, अब वो कैसा करना? रोज बोल बोल के हम बहुत परेशान हो गए यहाँ। तो लेबर भी बरोबर इनके पास नहीं है। हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फ्राहम करदा एम्बुलेंस का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को सहूलत देने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से फ्राहम करदा जदीद तरीन सहूलत से आरास्ता एम्बुलेंस को रियासती वजीर इमारत शरा वेमला प्रशांत रेड्डी व कलेक्टर ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर के साथ मॉनिटर, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, एसी, सेंट्रल ऑक्सीजन कनेक्शन जैसी सहूलियात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव, अर्बन रुकन असम्बली बी गाला गणेश गुप्ता, कलेक्टर नारायण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाली मुस्तहिक लड़कियों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम एक अजीम तोहफा होने का बिरकुर के साबिका ZPTC ड्रोनावली सतीश ने किया इजहार। बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई परिषद दफ्तर में साबिका ZPTC ड्रोनावली सतीश ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाली मुस्तहिक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवा के गरीब वालिदैन को राहत पहुँचाने का इजहार किया। వేదిక మీద ఆశీర్వాద పెద్దలు మన ఆప్తుడు శశిజన గారికి, కిష్టాపుర సర్పంచ్ పులియన్ బాబురావు గారికి,
ఈర్కూరు ఎంపీటీసీ సందీప్ పటేల్ గారికి, కోప్చల్ మెంబర్ రాజు గారికి, సీనల గారికి, దామరసి సర్పంచ్ మిత్రుల గారికి, రామభవన గారికి, రాష్ట్ర వైస్ చైర్మన్ కాశీరామ్ గారికి, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన ఇతరులకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఈ రోజుల్లో ఇంత కష్టకాలంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ కరోనా కాలంలో ఈ షాది ముబారక్ కానీ, కన్యా లక్ష్మి కానీ हर असम्बली हल्के में 100 मुस्तहिक अफराद को मुंतखब करते हुए दलित बंधु स्कीम को रूप अमल में लाने की रियासती वजीर कोपुला ईश्वर ने जिले कलेक्टरान को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दी हिदायत। करीमनगर के कलेक्ट्रेट दफ्तर से रियासती वजीर कोपुला ईश्वर ने जिले के तमाम कलेक्टरान से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से दलितों की तरक्की के लिए मुतारफ करदा दलित बंधु दलितों के लिए अजीम तोहफा करार देते हुए कहा कि करीमनगर व हुजूराबाद हल्के में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करदा दलित बंधु के बेहतरीन नताज जाने का इजहार किया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, CM दफ्तर के सेक्रेटरी राहुल बुज्जा, SC कॉर्पोरेशन चेयरमैन बंडा श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। अवाम अपनी शिकायतें शिकायती बॉक्स में दाखिल करें, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। जिले कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने अवाम की रास्त तौर पर मुलाकात और दरख्वास्त गुजारी पर रोक लगाते हुए अवाम से अपनी शिकायतें शिकायती बॉक्स में डालने की ख्वाहिश की। इसके अलावा किसी को भी कलेक्ट्रेट में अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और कलेक्ट्रेट पर तैनात पुलिस मुलाजमिन को इस बात से वाज़ेह अहकामात जारी करते हुए सिर्फ अमले को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है और अवाम को अपनी दरख्वास्तें पेश करने के लिए कलेक्ट्रेट में एक शिकायती बॉक्स को रखा गया है और इस बॉक्स में अवाम अपने मसाइल के मुतालिक शिकायतें तहरीरी तौर पर लिखकर इसमें डालने की सूरत में सुबह से शाम तक हासिल होने वाले दरख्वास्तों को मुतालिका अहदेदारों को रवाना कर दी जाएगी। सऊदी हुकूमत की उम्रा पर पाबंदियों की तरदीद। सऊदी अरब ने कोरोना की नई लहर में उम्रा पर पाबंदी के हवाले से उड़ने वाली अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी। अरब मीडिया या रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वजारत हज व उम्रे ने उम्रा अदायगी पर पाबंदी के हवाले से फैलने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए वजाहती बयान जारी कर दिया। वजारती हज व उम्रे की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना केसों में इजाफे के बावजूद उम्रा अदायगी और मस्जिद हरम व मस्जिद नबवी में ज़ायरीन या नमाजियों की आमद पर पाबंदी का मामला ज़ेरे गौर नहीं आया और न ही ऐसा कोई इरादा है। दूसरी जानिब इंतजामिया के तर्जुमान ने भी अफवाहों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ज़ायरीन को कोरोना से महफूज रखने के लिए SOPs मुकर्रर की गई हैं जिन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि ज़ायरीन और नमाजियों के लिए समाजी फासले और मास्क को लाजमी करार दिया गया है। मोरताल मंडल की मौजे सेटपली के VDC कमेटी ने एक बिरादरी के 20 खानदान को समाजी बाइकाट कर दिया। मुतासरा खानदान की शिकायत पर पुलिस की मदाखलत, VDC कमेटी को समाजी बाइकाट खत्म करने की दी हिदायत। समाजी बाइकाट का एक और वाकया मंजर-ए-आम पर आया। जिले निजामाबाद बालकुंडल कसम अली बांसवाड़ा के हुदूद में मोरताल मंडल के मौजे सेटपली में मुकामी विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने एक बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले 20 खानदान को समाजी बाइकाट करने का ऐलान किया। लिहाजा 20 दिनों से ये बिरादरी समाजी बाइकाट का सामना कर रहे हैं और अब इनसे कोई लेन देन नहीं कर रहा है और न कोई इनसे गुफ्तगू के लिए तैयार है। मुतासरा खानदान ने बताया कि इस गांव में इन्हें कोई चाय भी देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा अब इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। इन मुतासरे ने आज पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, समाजी बाइकाट को खत्म करने का मुतालबा। इन खानदानों के एक फर्द ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इसका एक बेटा अब्बा असर तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की से मोहब्बत करके शादी कर ली थी, जिसके बाद से इनकी मुकम्मल बिरादरी का बाइकाट किया जा रहा है और एक ताकतवर लड़की से मोहब्बत करके शादी करने की सजा दी जा रही है। इन मुतासरा खानदानों की शिकायत पर मोरताल ईसाई मोतियम राजू व भीमगल ईसाई श्रीनाथ ने सेटपली के जिम्मेदारान कमेटी को तलब किया और वजूहात मालूम और दो टूक अंदाज में कहा कि इस मुल्क में कोई भी बालिग लड़का और बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है और इनको कोई नहीं रोक सकता और इस तरह की कोशिश की और ताकत का मुजाहरा करते हुए मनमानी करना चाहे तो ऐसे अफराद के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। पुलिस VDC कमेटी को इस बिरादरी का फौरी तौर पर बाइकाट खत्म करने की हिदायत दी और गाँव में भी फोन के जरिए बाइकाट को खत्म करने की हिदायत जारी की। इंदलवी मंडल के मौजे तिरमनपल्ली में नासाज तबीयत के बाइस फौत होने वाले मिकाला पुत्तना के अफराद खानदान से धरपल्ली ZP बाजरेड्डी जगन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा।
इंदलवी मंडल के मुकाम पर धरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन ने दौरा करते हुए तरमनपल्ली गांव में नासाज तबीयत के बाइस फौत होने वाले मेकला पोतना के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ DCMS चेयरमैन सांबारू मोहन, MPP रमेश नायक, TRS मंडल सदर सीदाफ, यूथ के कायदीन क्रांति कुमार, TRS पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पुलिस श्रीनिवास डिचपल्ली, TRS मंडल सदर श्रीनिवास रेड्डी, TRS सीनियर खायद सी कृष्णा, दासरे लक्ष्मी नरसయ్య व दीगर खायदीन ने शिरकत की। తిరుమలపల్లి గ్రామంలో మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలైనటువంటి శ్రీ తెడ్డు బొందయ్య మరియు మేకల పోతన్న గారు పరమపదించడం జరిగింది. వారిని పరామర్శించడానికి రావడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించి అందరూ జాగ్రత్తగా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बांसवाड़ा शहर के पुलिस स्टेशन में CI के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले राजशेखर रेड्डी व मुरली को TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में वाक़े पुलिस स्टेशन में CI के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले राजशेखर रेड्डी व मुरली को TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व मंडल से मुंसलिक कायदीन ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर SI ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में अमन व अमान को फिजा कायम रखते हुए शहर के अवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन P बालाकृष्णा, म्यूनिसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, जिले रायतु समन्वय समिति सदर अंजय रेड्डी, PACS सदर Y कृष्णा रेड्डी, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन मोहम्मद एजाज, अब्दुल वहाब, जर्नलिस्ट व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में कोरोना के 4416 नए केसेस, 2 वफात। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की तादाद 29,127 तक पहुंच चुकी है और 21 जनवरी के बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 4,416 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। 1,920 मरीज सेहतियाब हुए हैं। कोरोना के सबब 2 अफराद की मौत के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 4,069 हो चुकी है। 24 घंटों में 1,20,243 मुआयने किए गए हैं, जिनमें 8,597 की रिपोर्ट मिलना बाकी है। शहर में 1,670 केस रिपोर्ट हुए, जबकि मेरचल मलकाजगिरी में 417 और रंगारेड्डी में 301 रिपोर्ट हुए। हनुमकुंडा में 178, खम्मा में 117 केस रिपोर्ट हुए। संगारेड्डी और महबूब नगर में 99, करीमनगर में 91, मंचियाल में 92, नलगोंडा में 90 केस रिपोर्ट हुए। रियासत में 2,960 कोरोना मरीज दवाखानों में जेर इलाज है, जबकि माँ बाकी मरीज घरेलू खरतीनिया में है। दवाखानों में जेर इलाज 2,960 में 1,950 मरीज खानगी दवाखानों में इलाज करवा रहे हैं, जबकि 1,010 मरीज सरकारी दवाखानों में इलाज करवा रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से तमाम जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो खानगी दवाखानों में जेर इलाज कोरोना वायरस के मरीजों की सूरत हाल और तादाद पर बारीकी से नजर रखें और इनके इलाज व मुआलजे के अलावा डिस्चार्ज की मुकम्मल तफसीलात महकमे को यौमिया एहसास पर रवाना करते रहें। सदर नशीन जिले प्रजा परिषद विठल राव ने ZP दफ्तर में माजूरीन से वाबस्ता टेबल कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। शहर के सुभाष नगर में वाक़े टेबल कैलेंडर ZP दफ्तर में सदर नशीन जिले प्रजा परिषद विठल राव ने माजूरीन से वाबस्ता टेबल कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ZP CEO गोविंद, माजूरीन से मुंसलिक यूनियन के जिले सदर शंकर राव, सेक्रेटरी बाबूराम, खजांची हनुमंटलू, राजना व दीगर ने शिरकत की।
जिले कामारेड्डी बेरकुट मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल में चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के जेर निगरानी में नेशनल गर्ल्स डे तकरीब का शानदार इनेकाद। जिले कामारेड्डी बेरकुट मंडल के मुकाम पर वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के जेर निगरानी में नेशनल गर्ल्स डे को शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा के CDPO अनुराधा ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल 24 जनवरी को गर्ल्स डे का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए तलबात के लिए मुख्तलिफ मुकाबला जात, तहरीरी व ड्राइंग कॉम्पिटिशन मुनक्किद किए जाते थे, लेकिन इस साल कोरोना वबा के मद्देनजर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा कोविड-19 उसूल ज़ाबित पर अमलावरी करते हुए प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया। इस तरह से मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TDP मंडल सुपरवाइजर कलावती, सुपरवाइजर लक्ष्मी, आंगनवाड़ी टीचर शिवा ज्योति, नागामणि, विनीता, ललिता, सारिका, बानू, जिले के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट MICPS मोहन व दीगर ने शिरकत की। लड़कियां तालीम हासिल करने के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का बोधन CDPO विनोदा ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर नेशनल गर्ल्स एजुकेशन डे के मौके पर क़ियाम अमल में लाए गए इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर बोधन के CDPO विनोदा ने शिरकत करते हुए कहा कि तमाम लड़कियां बचपन से ही तालीम के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के बायस ही लड़कियों में खुद एतमादी में इजाफा होता है। इसी तरह से जिले निज़ामुबाद से ताल्लुक़ रखने वाली कई लड़कियों ने गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए जिले का नाम रोशन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एड़पल्ली के नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास, MPTC जावेद बाबा, श्रावंती पुतना, आंगनवाड़ी टीचर्स कृष्णा, तुलसी, विजयलक्ष्मी, अनीता, नागामणि, गंगामणि व दीगर ने शिरकत की। అభివృద్ధికి వెన్నంటి ఉండే ఆమె స్త్రీ అంటారు. అంటే ఆమె వెనకంగా కంపల్సరీ అతని వెనకంగా అతని అభివృద్ధిలో పాల్పంచుకుంటూ అతని వెనకాల ఒక శక్తి స్త్రీ అంటారు. ప్రతి స్త్రీ చదువుకొని అందరితో మగవాళ్ళతో సమానంగా చదువుకొని ఈ దేశ అభివృద్ధికి अराजियात की मार्केट खदर में फिर इजाफा किया जाएगा। ज़राई अराजियात की खदर में 50%, खाली अराजियात में 35 और अपार्टमेंट कीमतों में 25% इजाफे का इम्कान। रियासत में फिर एक मरतबा रजिस्ट्रेशन की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने ज़राई व गैर ज़राई जायदादों की मार्केट खदर पर नजरसानी का फैसला किया है। नए मार्केट खदर पर 1 फरवरी से अमल की तैयारियां की जा रही। इत्तलात के मुताबिक ज़राई अराजियात की मार्केट खदर में 50%, खाली अराजियात की खदर में 35%, अपार्टमेंट्स की खदर में 25% का इजाफे का फैसला किया गया है। इसके अलावा आम मार्केट में जिन इलाकों में ज्यादा खदर हो तो इस पर भी नजरसानी की गुंजाइश का जायजा लिया जा रहा है। आइंदा 4-5 दिन में RDO क़यादत की कमेटियां मार्केट की नई खदर का तयखुन करेगी। महकमे रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से इस पर अमल का जायजा ले रहा है। गुज़िश्ता साल ही हुकूमत ने ज़राई गैर ज़राई जायदाद की मार्केट खदर के अलावा रजिस्ट्रेशन के चार्जेस व स्टाम्प्स की कीमतों में इजाफा किया था। इस तरह ज़राई और गैर ज़राई जायदादों की कीमतों में 20% का इजाफा हुआ था। फिर एक मरतबा मार्केट खदर ज़राई और गैर ज़राई जायदादों की कीमतों में इजाफे का जायजा लेने महकमे स्टाम्प एंड व रजिस्ट्रेशन के काम का इजलास हुआ। तमाम अजला में इजलास तलब करके 1-2 दिन में मार्केट खदर की तफसीलात हुकूमत को पेश करने का फैसला किया गया है। हुकूमत की मंजूरी के बाद इस पर अमल के लिए अहकाम जारी किए जाएंगे। गुज़िश्ता साल से जायदादों की खदर में इजाफे के अलावा इजाफी रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प्स की नई कीमतों पर अमल हो रहा है। हुकूमत ने ज़राई अराजी फी एकड़ की कीमत 75,000 रुपये मुकर्रर की थी। कम खदर रहने वाली अराजी की मार्केट खदर 50%, दरमियानी खदर वाली अराजी की मार्केट खदर में 40% का इजाफा किया था। इसके अलावा मार्केट में ज्यादा खदर वाली अराजी में 30% का इजाफा किया गया था। इसके अलावा खाली अराजियात की अक़ल तरीन कीमत 200 रुपये फी गज मुकर्रर की थी। इसकी खदर में भी 50%, 40% और 30% का इजाफा किया गया था। इसके अलावा अपार्टमेंट्स की खदर में फी स्क्वायर फीट में 1000 रुपये अक़ल तरीन कीमत में इजाफा किया गया, जिसमें भी 20-30% का इजाफा हुआ है। आइंदा तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम तालीम फीस पर कंट्रोल के लिए अनखरीफ कानून साजी 7वीं जमात तक निसाब दस्तियाब, सभी तंत्र रेडी।
हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूलों में पहली ता 10वीं जमात तक इंग्लिश मीडियम तालीम मुतारफ करने की तैयारी कर ली है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि तेलुगु मीडियम के साथ साथ स्कूली सतह पर इंग्लिश मीडियम तालीम को मुतारफ करने का फैसला किया गया ताकि तुलबा मुसाबिकत में दीगर तुलबा से पसमानदा ना रहे। इन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम की निसाबी कुतुब 7वीं जमात तक दस्तियाब है, बाकी क्लासेस के लिए भी जल्दी निसाबी कुतुब का इंतजाम कर लिया जाएगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि काबीनी सब कमेटी ने इंग्लिश मीडियम तालीम के आगाज के सिलसिले में तफसीली तौर पर जायजा लिया है। इन्होंने बताया कि 7वीं जमात तक जो निसाबी कुतुब तैयार की गई हैं, इनमें एक सफ़ा पर तेलुगु तो दूसरी सफ़ा पर इंग्लिश में निसाब मौजूद रहेगा। इन्होंने कहा कि मौजूदा टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और मखलूत जायदादों पर अनखरीद तकर्रुरात किए जाएंगे। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम तालीम का इंतजाम न होने पर वालिदैन बच्चों को खानगी स्कूलों में शरीक कराने के लिए मजबूर है। हुकूमत ने गरीब और मुतवस्सित तबकात के बोझ में कमी और हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम तालीम फराहम करने के मकसद से ये फैसला किया है। इन्होंने कहा कि खानगी तालीमी इदारों में फीस पर कंट्रोल के लिए प्रोफेसर तिरुपति राव कमेटी सिफारिशात के मुताबिक कानूनी साजी की जाएगी। मेरा गाँव मेरा स्कूल के उन्वान से अनखरीद प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम में NRIs और साबिक तुलबा को शामिल करते हुए सरकारी स्कूलों में सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। इन्होंने खानगी तालीमी इदारों से हुकूमत की मिली भगत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हुकूमत का मकसद हर किसी को मियारी तालीम फराहम करना है। इन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के तालीमी निजाम का जायजा लेते हुए फीस पर कंट्रोल के इक़दाम किए जाएंगे। फेस मास्क के इस्तेमाल का एक हैरान कुन फायदा सामने आ गया। फेस मास्क ऐसे दो अल्फाज जो कोरोना वायरस की वबा के दौरान तन तेज बहस का बाइस बन जाते हैं और ऐसा काफी अरसे तक होता रहा, मगर अब एक तहकीक में फेस मास्क के इस्तेमाल का एक हैरान कुन फायदा सामने आया। दरहकीकत कोविड के बचाने में मददगार फेस मास्क पहनने वाले अफराद ज्यादा पुरकशिश नजर आते हैं। ये दावा बरतानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आया। कार्डिफ यूनिवर्सिटी की तहकीक में 40 मर्दों को शामिल करके जायजा लिया गया कि मुख्तलिफ अकसाम के फेस मास्क से इनकी कशिश में क्या तब्दीलियां आई। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि नीले रंग के सर्जिकल फेस मास्क चेहरे की कशिश को दीगर अकसाम के मास्क के मुकाबले में ज्यादा बढ़ा देते हैं। मौक़िक़ीन ने बताया कि कोरोना की वबा से कब्ल होने वाली तहक़ीक़ में दरियाफ्त किया था कि मेडिकल फेस मास्क से चेहरे की कशिश घट जाती है। तो हम जानना चाहते हैं कि मौजूदा वक्त जब फेस मास्क का इस्तेमाल आम हो गया तो इस हवाले से तासुर बदला है या नहीं, जबकि ये भी जानना चाहते थे कि मास्क के इस्तेमाल से कोई असर होता है या नहीं। इन्होंने मजीद बताया कि तहक़ीक़ के नताइज से अंदिया मिलता है कि चेहरे इस वक्त ज्यादा पुरकशिश महसूस होते हैं जब वो नीले सर्जिकल मास्क से ढांपे हो। इनका कहना था कि इसकी मुमकिना वजह यह है कि शायद इस तरह के मास्क तिब्बी वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं और अब हम इन्हें इन अफराद से जोड़ते हैं जो निगहदाश्त या तिब्बी शोबे से मुंसलिक है। इन्होंने कहा कि शायद इस वक्त जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, फेस मास्क का इस्तेमाल यकीन दहानी दिलाने के साथ इसको पहनने वाले के बारे में ज्यादा मुस्बित तासुर कायम करता है। TG/UG सेट रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख में तौसी। तेलंगाना गुरुकुल अंडर ग्रेजुएट कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2022 TG/UG सेट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल के लिए आखिरी तारीख में 3 फरवरी तक तौसी की गई है। रियासत में तमाम तालीमी इदारों के लिए तातीलात के ऐलान और तुलबा की जानिब से सिलसिले में की गई दरख्वास्त के पेश नजर सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेजेस में 2022-23 के लिए BSc, BA, BCom और BBA साल अव्वल कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। ऑनलाइन दरख्वास्त अहलियती मियार और दीगर तफसीलात के लिए उम्मीदवार TSWREIS का वेबसाइट पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आरमूर शहर की मामड़ी पल्ली में वाक़े तपस्वी तेजस्वी नीलाय में क्लब ऑफ नवनतापुरम की ज़ेर निगरानी में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर शहर के मामड़ी पल्ली में वाक़े तपस्वी तेजस्वी नीलाय में क्लब ऑफ नवनतापुरम के ज़ेर निगरानी में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तुलबा के मुख्तलिफ मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें कामयाब करार दिए गए तुलबा को इनामात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट चेयरमैन सत्यनारायण, को चेयरमैन C रवि कुमार, मेम्बरान हरि नारायण, मोहनदास, रमना, करण, स्कूल के इंतजामिया व दीगर ने शिरकत। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर।
कोविड-19 की तीसरी लहर वेरिएंट ओमिक्रॉन के कहर बर्पा होने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया व जिम्मेदार ओहदेदारान एहतियाती इक़दाम रूबे अमल में लाए। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज के हमरा जिले जनरल हॉस्पिटल की जदीद एम्बुलेंस का किया इफ्तिताह। हर असम्बली हल्के में 100 मुस्तहिक अशखास को मुंतखब करते हुए दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल में लाने के लिए रियासती वज़ीर कोपुला ईश्वर ने जिले के तमाम कलेक्टरान को दी हिदायत। सुस्त रफ्तारी म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर से अवाम बेहाल। बोधन रोड पर जारी नाली के तामीरी काम 1.5 माह से जारी। तामीरी कामों को जल्द जल्द मुकम्मल करने के लिए अवाम ने ओहदेदारों से की रोशन टीवी के जरिए अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।